Hello guys, my name is Zakir and I am going to teach you one of the most important portion of your syllabus, that is accountancy. Okay guys, so today in this lecture I am going to tell you a brief introduction about the accountancy. Okay guys, so let us start. First of all, we shall come to know what is actually this accountancy, what is accounting. Okay, as I have write down here, you could see that accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation as well as communication of all financial transactions. So we will discuss these through one by one. First of all, like recording, you know that we do recording in where journal. Okay, I'm giving a brief introduction about this. Journal, if you have heard about the word journal, it is derived from a Latin word. Okay, guys, Latin word jour, 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 which means day book. Okay, so jour means day book. And in this journal, we do our recording. You know that first we can do transaction analysis, then we make journal, then we make ledger, then we make trial balance, then we make final accounts. Okay, like trading account, profit and loss account, as well as balance sheet. We will discuss it in further topics. Okay guys, so here we have discussed about the art of recording, as you know, is done in journal is also called book of original entry, or first entry. Remember this thing. Okay, then after recording, what we do classifying. Where would you classify? We classify these transactions where? In ledger. Ledger is that where we classify. Remember this. First we prepare, as I have talked earlier, trial balance. First we prepare journal, after that ledger. Okay, the transaction that are posted from journal to ledger, this is called posting. Most important questions. Okay guys, that is all about this. And then we summarizing is done in trial balance, trading account, profit and loss account. Okay guys, this is another process. Remember thing, I will tell you a thing, that first step of accounting is identification, second is measuring, third is recording, classification, summarizing, analyzing, interpretation and communication. Please guys remember this first one and last one, because in most of the SSB exams वहाँ पे पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग कौन सा होता है, तो आइडेंटिफिकेशन, लास्ट स्टेप तो कम्युनिकेशन. ओके गाइज, यू गॉट इट. इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, accounting is called language of business. Please guys remember this thing, accounting is called language of business. Okay, wait guys, this is called accounting, called language of business. This is also most important point. After that we will tell you something about these things. What is transaction? Some important terms like transaction means exchange of goods or services for money or money is worth or an credit is known as transaction. Transaction क्या होती है जिसमें हम exchange करते हैं goods और services. Suppose guys, ये बिजनेस एक पर्सन है, ये बी पर्सन है. ओके, ट्रांजेक्शन क्या होती है, सपोज ये गुड्स देता है इसको, ये उसको वहाँ से पैसा देता है, या क्रेडिट पे लेता है या किसी और पे लेता है, या कोई और चीज़ देता है जिसके वर्थ, कीमत, वैल्यू मनी के बराबर होता है. इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज़ वर्थ और एन क्रेडिट इज़ नोन एज ट्रांजैक्शन. एनी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव फॉलोइंग फीचर्स. कौन कौन सा फीचर होना चाहिए? लाइक फर्स्ट वन, देयर मस्ट बी टू पार्टीज. हर एक ट्रांजैक्शन में दो पार्टी होना चाहिए, तभी तो ट्रांजैक्शन बनेगी. लाइक ये एक पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये यहाँ से कुछ
खरीद लेता है, बी ए से कुछ खरीद लेता है, वहाँ से पैसा देता है या क्रेडिट में लेता है, तभी तो ट्रांजैक्शन पॉसिबल है जब दो पर्सनस होंगे। देयर मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में जो नापा जाएगा उसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन मस्ट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विस, जिसमें प्रॉपर्टी और सर्विस ट्रांसफर होती है। देयर मस्ट बी द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। कैसे होती है फाइनेंशियल? क्वांटिटेटिव जैसे कि ये नंबर्स में जो हम गिन सकते हैं, नंबर्स, क्वांटिटी, और होता है क्वालिटेटिव। ओके गाइज, सो देन most important, one of the most important point is that social activists are not included in transactions. Okay guys, so after that we come to know about another term that is cash transaction. The transaction in which cash is involved at the time of transaction, जब हम transaction करते हैं जिसमें cash involve होगा। like guys, ये है business वाला एक, ये है कोई पर्सन ए, इसके पास गुड्स है, ये उसको पैसा देते हैं, वहाँ से गुड्स लेता है, उसी को हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसी को बोलते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन। और क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है गाइज? क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होती है द ट्रांजैक्शन इन विच कैश नॉट इन्वॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लाइक अपोजिट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में पैसों का मेल होता है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पैसा नहीं होता है, क्रेडिट पे होता है। सपोज ये बराबर, जैसे मैंने एग्जांपल दी अर्लियर, ये है बिजनेस पर्सन बी, ये है ए, ये माल लेता है यहाँ से ए पर्सन यहाँ से माल लेता है, कौन? ए पर्सन, और ये उधार में लेता है, उसको कुछ नहीं देता, बोलता कल दे दूंगा। और गाइस यहीं पे मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जो ए है बी के लिए ये इसको डेटर बनता है। डेटर कौन होता है? अ पर्सन हु ओज मनी टू, जो बिजनेस को पैसा देगा, उसने यहाँ से क्रेडिट से माल लिया, तो इसका क्या बन गया? डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर। याद रखिए, यही से डेटर हमारे लिए एसेट होता है। बिजनेस हमें हमेशा बिजनेस की तरफ व्यू पॉइंट से देखना होता है। ओके गाइज, इसके बाद क्या है? इसके बाद है बुक कीपिंग। गाइस लिसन, बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग अगर हम देखेंगे सिंपल वर्ड्स में, रिकॉर्डिंग फेज, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। बुक कीपिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक कीपिंग जहाँ प्राइमरी स्टेज होता है। ओके, ये होता है प्राइमरी स्टेज हमेशा। और जो बुक कीपिंग जहाँ पे एंड होती है, वहाँ से हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। याद रखिए उसको। जैसे मैंने बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस हाउ टू रिकॉर्ड ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैश और गुड्स और एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस फॉर डूइंग बिजनेस इज नोन ए कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? पैसा या कोई चीज़ या कुछ भी जो एक ओनर किस में लगाता है? बिजनेस में लगाता है। सपोज ये है पर्सन ए, ये है बिजनेस, इसने बिजनेस में 10 लाख पैसा लगाया, ये इसके लिए, ये इसकी कैपिटल हो गई। ओके गाइस, यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज ये है पर्सन ए, इसने बिजनेस में लगाए 10 लाख, बिजनेस के लिए क्या हो गई? ये बोलता है बिजनेस को मैं तेरे को पैसा दूंगा, लेकिन तुझे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब बिजनेस इसको इंटरेस्ट देगा तो होता है एक्सपेंस। ओके गाइस, इसका मतलब क्या हो? इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल बाय प्रोप्राइटर क्या होती है? एक्सपेंस। ये नोट डाउन कीजिए आप सब। ओके, इसके बाद क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कैश गुड्स आर एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस फॉर डूइंग बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। इट इज आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी होती है। ओके गाइस, और ये किस अकाउंट में आता है? जैसे हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर्सनल अकाउंट्स। हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं, यू ऑल नो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल,
नॉमिनल, इसमें क्या आते हैं पर्सनल में, पर्सनल अकाउंट्स आते हैं, राम शाम। रियल में एसेट्स होते हैं। नॉमिनल में एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, वो हम देखेंगे, इनकम गेन्स इसमें आते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ड्राइंग्स। कैश गुड्स आर एनीथिंग विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब प्रॉपरेटर कुछ बिजनेस से लेता है अपने लिए, सपोज पैसे लेगा, गुड्स लेगा, एनीथिंग कुछ भी ले सकता, उसी को बोलते हैं ड्राइंग। ओके गाइस, ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस होती है। ओके गाइस, रिड्यूस होती है, याद रखना। और ड्राइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचायत अकाउंट स्टैंड में ये क्वेश्चन आया था, ड्राइंग का क्या होता है। सो रिमेंबर द ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट होता है। ओके गाइस, इसके बाद क्या है, ओनर्स प्रोपरेटर, ओनर या प्रोपरेटर या एंटरप्रेनर। कौन होता है ओनर, कौन होता है प्रोपरेटर एंटरप्रेनर, द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल। जो कैपिटल हमने पढ़ा अभी क्या होता है, जहाँ से यहाँ पर कैश और गुड्स जो ओनर लगाता है बिजनेस में, यही बोलते हैं द पर्सन जो हु इन्वेस्ट कैपिटल एंड बियर्स आल द रिस्क्स कनेक्टेड विद द बिजनेस। जो बर्दाश्त करता है हर को, अगर उसको कल खुदा ना घाटा हो गया उसको खुद देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम इसको, ओनर प्रोपरेटर एंड एंटरप्रेनर। ओके गाइज, इसके बाद हमारा है डेटर। मैंने अभी बोला डेटर कौन होता है, द पर्सन हु ओव्स मनी टू द फर्म इज नोन एज डेटर। इट इज समटाइम्स आल्सो नोन एज सैलरी डेटर आर बुक डेटर्स व्हेन द डेटर्स आर मोर देन वन। डेटर क्या होता है, सपोज ये बिजनेस वाला है, इसने इसको गुड्स दिए मगर क्रेडिट पे अब इसको पैसा ए को देना होगा यहाँ की तरफ, तो इसके लिए डेटर बन गया। डेटर कौन होता है, ए पर्सन हु जो बिजनेस को पैसा देगा। ओके, जब एक से ज़्यादा डेटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सन्ड्री। इसके बाद बैड डेट, बैड डेट होता है लॉस बिजनेस के लिए। सपोज द अमाउंट ऑफ मनी विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द बुक डेटर्स। डेटर से जो पैसे रिकवर नहीं होंगे, ये कोई डेटर है, ये बिजनेस है, इसको इससे पैसे लेने थे बिजनेस को डेटर से, मगर डेटर के पास पैसे नहीं है, जो रिकवर नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं बैड डेटर्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन दिस, बैड डेट ये लॉस होता है बिजनेस के लिए। और इसके बाद हमारा क्या है, क्रेडिटर, द पर्सन और अनिबल टू होम, जिसको आप बिजनेस पैसा देगा। सपोज ये कोई बिजनेस वाला है, ये कोई फर्म है, बिजनेस ने इस फर्म से गुड्स लिए क्रेडिट पे, उधार पे, अब बिजनेस को पैसा देना होगा इसको, इसलिए क्रेडिटर कौन होता है, अब पर्सन, द पर्सन और एनिमल टू होम मनी इज ओन्ड बाय द बिजनेस। जो जिसको बिजनेस को पैसा देना होगा उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जब एक या दो, एक से ज़्यादा क्रेडिटर होते हैं उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बाद है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर रिटर्न। वो बिजनेस की प्रॉपर्टी जो कन्वर्ट हो सकती है कैश में, इज टर्म्ड एज एसेट। इसी को बोलते हैं एसेट, लाइक बिल्डिंग, कैश, लैंड। इसमें भी दो किस्म आते हैं, एक है इंटेंजिबल और एक है टेंजिबल। इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट राइट। ओके गाइज, इसके बाद है इसके कुछ टाइप, लाइक जहाँ पे मैंने लिखा है कौन कौन, करंट एसेट और नॉन फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट। इंशाल्लाह वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। ओके, गुड बाय। अगर आपको ये अच्छा लेक्चर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।